نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت کے ساتھ ہیں؟ ایکسائٹڈ ہیں؟ خوش ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی اسکرین شیئر کرتی ہوں۔ چلیے سیڈ بعد میں ہوئیے گا نا، ابھی خوشی منا لیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ 4 سال کی محنت ہے آپ سب کی، آپ کے گھر والوں کی، ٹیچرز کی، پوری الہدا کی ٹیم کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کے بارے میں تو آتا ہے نا، فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ خوش ہوں کہ جو چیز ہم نے جمع کی ہے اس پہ، ہے نا، تو خوش ہوا کریں۔ جب بھی ایسی چیز ہو نا کہ خوشی اور اداسی دونوں ہوں تو پھر خوشی کی طرف چلے جایا کریں، کیونکہ اداسی کے تو ویسے بھی ڈھیر سارے موقع ملتے ہیں، خوشی کے موقع تھوڑا کم ملتے ہیں نا، رائٹ؟ تو پھر خوش ہوا کریں۔ چلیں الحمدللہ ہم چلتے ہیں ہمارے تجوید کے سیشن کی طرف۔ کچھ چیزیں آپ لوگوں سے بات کرنی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے شروع میں کیے تھے، کچھ سائنس کیے تھے جو کہ قرآن میں ہمیں ملتے ہیں۔ Let me go to that. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ۔ تو جیم، سلی، قلی، لام، میم، یہ ڈاٹس، یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو کلیئر تھی، لیکن آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں میں نے نہیں بتائی تھی اس وقت، اور آپ کو کہا تھا کہ یہ بعد میں بتاؤں گی، رائٹ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ والا جو ڈاٹ ہے، یہ جو دیکھیں یا ڈائمنڈ بنا ہوا ہوگا یا گول ڈاٹ ہے بلیک کلر کا، ٹھیک ہے، سرکل ہے، ٹھیک ہے، 2 طرح کے ہیں۔ اب یہ جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس قرآن میں 2 جگہ پہ ہے۔ پہلے ہم بلیک ڈاٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بلیک سرکل بنا ہوا ہے نا ہمارے پاس، یہ قرآن میں سورۃ ہود میں ہے۔ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اس پیج پہ کہیں؟ دیکھیے ذرا کہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، کون سے ورڈ پہ دکھائی دے رہا ہے؟ اس پہ دکھائی دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ پر۔ آپ لوگ اپنے نوٹس میں بھی لکھ لیں کہ سورۃ ہود ہے اور آیت نمبر 41 ہے، اور یہاں پر کیا رول ہے کہ یہاں پر را کے نیچے ایکچولی کسرہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر را کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، لیکن کسرہ کی جگہ پہ یہاں پہ ڈاٹ ہے، تو یہاں پر بیسیکلی ہمیں اسے امالہ کی طرح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ کہ فتحہ اور کسرہ کے بیچ کی، فتح اور کسرہ کے بیچ کا ساؤنڈ ہو۔ فتح کا کیا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ اگر ہم را کا ساؤنڈ نکالیں، فتح کا کیا ساؤنڈ ہوگا؟ را، ٹھیک ہے، اور کسرہ کا کیا ساؤنڈ ہوگا؟ ری، اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ رے، مجریہا، ٹھیک ہے، نہ را نہ ری، رے۔ جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے نا ہم مجہول طریقے سے، اب الحمدللہ ہم نے بہت امپروو کیا، الحمدللہ رب العالمین، ورنہ ہم کیا پڑھتے تھے؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، رائٹ؟ لیکن قرآن میں صرف اس جگہ مجریہا پڑھیں گے ہم، اور اس رول کو کیا کہتے ہیں کہ یہاں ہم را کو کیسے ادا کر رہے ہیں؟ امالہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور کیوں ادا کریں گے؟ کیوں امالہ کے ساتھ ادا کریں گے؟ کیونکہ
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ऐसे पढ़ा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब दूसरा वो जो डायमंड शेप था ना, कि डायमंड वाला यहाँ पर हमने एक देखा, उसको इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं। उसको देखने से पहले वहाँ पे इशमाम का रूल है, ठीक है। उसको देखने से पहले इदगाम कबीर को जानना चाहेंगे आप लोग? इदगाम कबीर की एग्जाम्पल्स करना चाहेंगे? लेट मी गो देयर। ये पूरे आपके 4 साल आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। चलिए, इदगाम का जब हमने टॉपिक किया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हमने इदगाम की एक किस्म की थी कि इदगाम सगीर या इदगाम कबीर होता है, राइट। इदगाम सगीर कौन सा होता है? जब पहला दो लेटर्स होते हैं ना जिनका आपस में इदगाम हो रहा होता है, जो आपस में मुदगम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है उसको वो साकिन होता है, और दूसरा वाला जो सेकंड वाला सेकंड लेटर है वो मुतहर्रिक होता है, तो वो इदगाम सगीर होता है। और आज हम देखेंगे इदगाम कबीर की कुछ एग्जाम्पल्स। इदगाम कबीर क्या है? कि दोनों मुतहर्रिक हो, फर्स्ट लेटर भी मुतहर्रिक हो, सेकंड लेटर भी मुतहर्रिक हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उसको देखते हैं हम। अच्छा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह किरात के बारे में पता चला था। आप लोगों ने उलूमुल कुरान में किया था ना किरात को, सबा हर्फ और अशरा किरात। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में सिस्टर हुमा ने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर लास्ट क्लास में वो भी क्लियर हो गया था, राइट, कि वो जो वर्ड था सूरतुल अहज़ाब का, व इज़ ज़ागत, तो सिस्टर हुमा ने आपको क्या कहा था कि हफ्स में यहाँ पे इदगाम नहीं होता। तो कोई बात समझ आई थी आपको? हम तालीमुल कुरान में जिस तिलावत से पढ़ रहे हैं, जो हमने सीखा वो कौन से तरीके से सीखा है? हफ्स अन आसिम। ये अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हमने कौन से तरीका सीखा है? हफ्स अन आसिम, ठीक है। और तरीका शातबिया सीखा है। इसमें भी दो तरीके होते हैं, तरीक तैयबा और तरीक शातबिया। तो हम तरीक शातबिया से सीख रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो तजवीद के रूल्स आते हैं, जो तजवीद आपने सीखी है, जो आप तिलावत करते हैं, वो कौन से वे पे करते हैं। शाबाश, सब लिखिए। हफ्स अन आसिम तरीकत शातबिया। क्लियर? ठीक है, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जैसे उसमें बताया गया था ना कि वहाँ पे हफ्स में इदगाम नहीं है, कुछ और किरात में वहाँ पे इदगाम है, लेकिन हफ्स में इदगाम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया था। तो अब हम इदगाम कबीर के भी नेक्स्ट पेज पे जो कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं वो हफ्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कि हफ्स में 5 कुरान में 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इदगाम कबीर है। और हमें फिक्र की बात क्यों नहीं है? क्यों आपको पहले नहीं बताया, परेशान नहीं किया? क्योंकि वो इदगाम ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो हमें फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ इदगाम करना है या नहीं करना। अब हम देखते हैं एक एक एग्जाम्पल को, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? सबसे पहले सूरतुल कहफ में है, यहाँ पर देखिए माँ। अब वर्ड को पहले असल वर्ड को देखिएगा, ठीक है, कि असल वर्ड कौन सा था। पहले हम असल वर्ड को देखेंगे। लेट मी टेक माय पेंसिल। असल वर्ड क्या था यहाँ पर आप देखें, माँ, ठीक है। मक्कननी, मक्कननी। तो यहाँ पर देखें कहाँ कहाँ पर है, एक नून पे फतहा है और दूसरे नून पे क्या है, कसरा है। दोनों नून बराबर बराबर में आ रहे हैं, सॉरी, एक पे फतहा एक पे कसरा। अब आप बोल के देखिए, मक्कननी। थोड़ा जबान पे मुश्किल है, मक्कननी। और अब इससे पढ़िए, मक्कन्नी, मक्कन्नी, मक्कन्नी।
गुन्ना तो होगा ना, क्योंकि वो इदगाम हो रहा है नून का नून में, तो जाहिर सी बात है वहाँ तशदीद लगेगा, तो वो गुन्ना तो होगा ना। ठीक है, फर्क पड़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्यों मालूम नहीं हुआ कि यहाँ इदगाम कबीर है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें इतनी ग्रामर नहीं आती, ना हमें असल वर्ड की कॉम्पोजिशन आती है कि यहाँ पर असल में होना क्या चाहिए था, वर्ड किस फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक है, तो वर्ड असल इस फॉर्म में होना चाहिए था और इसी फॉर्म में है। ठीक है, इसी फॉर्म में वर्ड है, लेकिन उसको पढ़ने की आसानी के लिए इस तरीके से कर दिया गया है, इसलिए ये इस तरीके से लिखा गया है। और ये आसानी क्या मैं और आप कर रहे हैं कि भाई मुश्किल लग रहा है कुरान, तो हमारी आसानी के लिए हम जो चाहें कर लें और फिर उसको वैसे लिख भी दें? नहीं, ये सब का सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक्चुअल वर्ड ये था, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इससे आप ये ना कीजिएगा कि क्या कोई गलती है, असल वर्ड तो ये था तो ये क्यों नहीं है। अब ये क्या है बताइए, अन और माँ है, सही है, और ये क्या है, मिन और माँ है। कुरान में कैसा लिखा हुआ होता है, अम्मा लिखा हुआ होता है, मिम्मा लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इदगाम हो रहा है ना, और यहाँ पे जो इदगाम हुआ तो हमारे पास लिखा हुआ ही वैसे आ गया। लेकिन क्योंकि हमें ये बेसिक वर्ड्स पता है कि ये अन और माँ है, हमें इसका तर्जुमा भी पता है, इसलिए हमें इसका मालूम है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों मुतहरिक थे ना, नून फतहा था और नून कसरा था, राइट। लेकिन अब ये किस में बदल गया, मक्कनी, तो अब किस में बदल गया, पहले नून को सुकून दे दिया गया और दूसरे नून पे कसरा वैसे ही रहा। सही है, क्लियर है? ये हो गई इदगाम कबीर की एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम, और सिर्फ 5 जगह पर है, तो हमें वैसे भी ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है कि कुरान में वैसे ही लिखा हुआ है, तो हमें ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ इदगाम कबीर हो रहा है, क्योंकि हम तजवीद के स्टूडेंट्स हैं और हम बड़े भी हो गए। ठीक है, चलिए अब सूरतुल अनआम, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 80 में हमारी दूसरी एग्जाम्पल। और यहाँ पर आप देखिए, अतुहाजुननी, दोबारा यहाँ पर देखिए, नून फतहा और नून कसरा। ठीक है, यहाँ पे भी नून फतहा और नून कसरा है दोबारा हमारे पास। तो यहाँ पर भी नून फतहा और नून कसरा दो मुतहरिक थे और उसको एक नून साकिन और दूसरे नून कसरा ही रहने दिया। ठीक है, तो अतुहाजुनी, अब यहाँ पर क्या हो गया, पहले अतुहाजुननी में कितने मद्द लाजिम थे, यहाँ पे मद बनी हुई नहीं, आप लोग खुद बताइए। जब पहला वर्ड था तो अतुहाजुननी में कितने मद्द लाजिम थे, एक मद्द लाजिम था ना, क्योंकि अलिफ मद के बाद हमारे पास तशदीद है। अब यहाँ पर कितने मद्द लाजिम हो गए, 2, क्योंकि यहाँ अलिफ मद के बाद तशदीद है और यहाँ पर वाव मद के बाद तशदीद है। ठीक है, तो इदगाम कबीर की वजह से यहाँ पर हमारे पास मद्द लाजिम भी बन गया। चलिए यहाँ तक समझ आई है आप लोगों को बात, ये दोनों समझ आ गए। चलिए अब देखें अज़ुमर आयत 64, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी तमुरूननी है, ये भी ननी, और इसको क्या कर दिया गया, उसी तरह नून फतह और नून कसरा था और उसको इदगाम करने के लिए पहले नून को साकिन और दूसरे नून को, नून पे कसरा थी वही रहने दी और वो एक दूसरे में मुदगम हो गए, तमुरूनी। ठीक है, क्लियर है ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों को? आगे चलें, अब सूरतुल बकरा आया नंबर 271 और सूरतुल निसा आयत नंबर 58। ये वर्ड यही है, लेकिन दोनों सूरतों में आया है, 2 जगहों पर आया है। ठीक है, लेकिन वर्ड एक ही है। अब ये वर्ड क्या था, नियामा माँ, नियामा माँ। अब आप देखिए, नियामा माँ थोड़ा सा जबान पे मुश्किल भारी लगता है ना, तो इसे कर दिया गया
निअम्मा। अब यहाँ पर कौन से दो मुतहरिक लेटर्स हैं बताइए शाबाश, कौन से दो मुतहरिक लेटर्स हैं जिनका आपस में इदगाम हो रहा है? मीम और मीम। एक मीम फतहा है और दूसरा भी मीम फतहा है, ठीक है। तो उसको कैसे कर दिया गया कि पहले मीम को सुकून दे दिया गया, दूसरे का फतहा रखा गया। तो जब पहले मीम को सुकून दे दिया गया और उसके बराबर में मीम आ गया है दूसरा, तो फिर जाहिर सी बात हम तशदीद लगाते हैं ना। तो ये क्या बन गया? निअमा से निअम्मा। क्लियर? चलिए अब हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है जो कि सूरत यूसुफ में है, और यहाँ पर देखिए वर्ड था ला ता मनूना, मनूना, ठीक है, नूना। वहां पर नानी था, फतहा और कसरा वाले नून थे। यहाँ पर क्या है? दम्मा और फतहा वाले नून है, ठीक है ना, नू और ना है। तो उसको भी पहले वाले तरीके से ही इदगाम किया गया कि पहले नून को सुकून दे दिया गया और दूसरा का फतहा वैसे ही रखा गया। तो पहला नून सुकून है, दूसरे के ऊपर फतहा है, तो फिर हम कैसे करेंगे उसे? जब इदगाम करेंगे तो तशदीद आ जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा? ला ता मन्ना, ठीक है। कैसा होगा? ला ता मन्ना। अब जब आप सूरत यूसुफ में देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको डायमंड शेप की साइन नजर आएगी। जल्दी से शाबाश सूरत यूसुफ निकालिए और मुझे पेज नंबर बताइए आप लोग, शाबाश। सूरत यूसुफ आयत नंबर 11, शाबाश। मुसहफ में खोलिए और पेज नंबर बताइए। 236, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हम कुरान में उसको देख सके, हमारा शरह सदर हो सके। चलिए बताइए, आपको नजर आ रहा है? तो कभी ये सर्कल की शेप में ही होता है, ये यानी ये दो शेप्स में आपको मिलता है, ठीक है। ये दोनों जो हमारे थे ना, पहले हमने इमाला किया था, रिमेंबर, और अभी जो हम करेंगे वो इशमाम का रूल है। तो ये दोनों रूल्स हैं। किसी मुसहफ में आपको एज अ ब्लैक डॉट मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा आपका ब्लैक डॉट होगा, और किसी मुसहफ में आपको डायमंड शेप मिलेगा। तो ये दोनों शेप हो सकते हैं इन रूल्स के लिए। आपके मुसहफ में डायमंड शेप है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो कुछ मुसहफ में डॉट है, कुछ में डायमंड शेप है। अगर आप चाहें तो आप लोग अपने टेलीग्राम के चैनल पे एक दो बहनें शेयर भी कर लीजिएगा, जिनके पास डायमंड है, जिनके पास डॉट है, तो सबके पास उसकी पिक्चर आ जाएगी जहन में कि कैसा दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा जो रूल है वो इशमाम का रूल है। अब ये सारे इंशाल्लाह ताला आगे हम मज़ीद आगे जब आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला तजवीद को और गहराइयों से पढ़ेंगे और क़िराअत में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इशमाम, रोम, ये सारे तरीके हैं, इसका मालूम होगा कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल हमने इशमाम क्या करना है कि हमने दम्मा अदा नहीं करना, लेकिन हमने दम्मा के तरह मुंह गोल करना है। अब आपको याद है, यहाँ पर ही हम देखते हैं कुरान में ताकि हमें याद हो, यहाँ पर नून मुशद्दद और फतहा है, राइट। लेकिन असल में इस मुशद्दद फतहा के नीचे कौन है? दो नून थे। पहला नून क्या था? याद है आपको? अभी हमने किया, पहले नून पे क्या था? दम्मा था, और बाद वाले नून पे फतहा था। तो बेसिकली जब हम ता मन पहला वाला नून अदा करते हैं तो वो साकिन है, आई मीन दम्मा के साथ है, ठीक है, जिसको हमने साकिन कर दिया है। तो यहाँ पर हमने अदा तो फतहा करनी है, लेकिन मुंह जो है वो गोल बनाना है। जो हम नॉर्मली मिस्टेक करते हैं ना कि फतहा अदा कर रहे होते हैं तो मुंह गोल हो रहा होता है, तो यहाँ पर हमने वो मिस्टेक नहीं, यहाँ इस तरीके से अदा होता है तमन्ना। आपको पता चल रहा है कि मैंने मुंह गोल किया? अच्छा, पहले मैं क्लियर पढ़ रही हूँ, ठीक है, क्लियर सुनिए। ला तमन्ना, कहीं पे मुंह गोल हुआ? ला तमन्ना, कहीं पे मुंह गोल हुआ? अब नहीं हुआ। एक दफा और ट्राई करती हूँ। ला तमन्ना,
मुंह गोल हुआ? आप लोग तो तेज हो गए, ट्रिक भी नहीं होते कि मैंने तीनों दफा ठीक ही बगैर मुंह गोल किए ही पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसको मुंह गोल करके पढ़ती हूँ, ठीक है। ला त मम्मा, ला त मम्मा। अब आपको पता चल रहा है कि मुंह गोल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। और शेख एमन सुवैद की एक वीडियो है यूट्यूब में, उन्होंने इसको बहुत क्लियरली बताया है। वैसे तो वो अरबी में है, लेकिन मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी और आप लोगों को बता दूंगी कि कितनी मिनट पे जाकर सुने, ठीक है ना। तो वो बाकायदा उनकी वीडियो है, उनकी उनकी उनका चेहरा भी नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ वो मुंह गोल कर रहे हैं। आप स्लो मोशन में बार बार रिपीट करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? कोई सवाल है यहाँ पर आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर चलें, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम है, तो फिर हम तत्बीक कर लें, थोड़ा सा असेसमेंट की तैयारी कर लें। अच्छा, आप लोगों को मैसेज मिल गया था? कल मैंने मैसेज शेयर किया था आप लोगों के साथ। चलो आप लोग बताइए, हमारी डेडलाइन क्विज नंबर 4 to 8 की क्या डेडलाइन थी? 21 अक्टूबर गुजर चुकी डेडलाइन। जब डेडलाइन गुजर जाती है तो क्या उसके बाद भी हम क्विज कर सकते हैं? जब तक कोई बहन हमें सूरतुल अहज़ाब का पेज नंबर बता दे, ठीक है। ओके, हम उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं सदका देकर, ठीक है। अच्छा, अब हमने टाइम पे अटेम्प्ट किया या फिर हमने टाइम के बाद सदका देकर अटेम्प्ट किया और अल्लाह ना करे लेकिन हम फेल हो गए, तो फिर क्या होता है? फिर क्या करना है? रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट के बारे में क्या अनाउंस किया गया था आप लोगों को शुरू में कि आपके रीटेस्ट खुलेंगे वंस आपकी सारी क्विजेस क्लोज हो जाएंगी, ठीक है ना, डेडलाइन के बाद। फिर भी मुझे ढेर सारे मैसेजेस आए कि हमारी स्टूडेंट फेल हो गई और उनको रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट का मकसद क्या होता है कि यहाँ आप फेल हुए, आपने 2 सिली मिस्टेक किए, तो आप फौरन जाकर रीटेस्ट खोलें और टेस्ट दे दें? नहीं, रीटेस्ट का क्या मकसद होता है? अगर हम फेल हुए, चाहे सिली मिस्टेक थी चाहे कोई भी मिस्टेक थी, रीटेस्ट का मकसद ये होना चाहिए कि हम दोबारा उन टॉपिक्स को रिव्यू करें और दें। मोहम्मद होम स्कूलिंग कर रहा है ना, तो उनके साथ ये होता है, अगर उसकी एक सिली मिस्टेक हो जाती है किसी क्विज में, तो उसके बाद रीटेस्ट के ऑप्शन होते हैं, 2 दफ़ा होते हैं उसके पास रीटेस्ट के ऑप्शन। तो उसको बस होता है कि ये सिली मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा उसको बंद करता हूँ, दोबारा खोलता हूँ और अब कर लूँगा। लेकिन मेरी स्ट्रिक्ट उसके ऊपर ये पॉलिसी है कि वी कैन नॉट डू दिस। अगर तो सिली मिस्टेक से भी फेल हुए हो, बंद कर दोगे क्विज, यू हैव टू रिव्यू एवरी चैप्टर, क्योंकि उनके 5 या 6 चैप्टर्स होते हैं और फिर वो 5-6 चैप्टर्स एक पूरा यूनिट बनता है, तो उस यूनिट का टेस्ट आता है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वो पूरे हमने 5 से 6 चैप्टर रिव्यू करने हैं और फिर हम दोबारा टेस्ट देंगे, ताकि उसका कोई मकसद हासिल हो। वरना हमने जाके बस पास होना है तो फिर मकसद तो हासिल नहीं होगा ना। अच्छा, अब बताइए रीटेस्ट कब ओपन होंगे? क्या सबको ये मैसेज मिल गया था कि रीटेस्ट कब ओपन होंगे? 1 नवंबर को रीटेस्ट ओपन होंगे, ताकि इंशाल्लाह ताला आपके पास इतना टाइम भी है। 21 को आपकी लास्ट डेट थी, अब 1 नवंबर तक टाइम है। अगर अल्लाह ना करे फेल हुए हुए तो आप उसको प्रिपेयर वेल करें और 1 नवंबर से इंशाल्लाह ताला खुले हुए होंगे और 30 नवंबर लास्ट डेट है रीटेस्ट की, ठीक है। वो जो कि 30 नवंबर आपके सारे कोर्स वर्क की लास्ट डेट बताई गई है ना आपको, ठीक है। चलिए, अब बारी आ जाती है ओरल असेसमेंट की कि वो कब से आएंगे। ओरल असेसमेंट इंशाल्लाह ताला आपके आएंगे नवंबर 3 से, ठीक है। नवंबर 3 पहले ग्रुप का होगा और आपको बता दिया जाएगा। अब नवंबर 3 है, वी हैव इनफ टाइम, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी हम 1 हफ्ते पहले आपको स्केड्यूल भेज दें, ठीक है। आपका स्केड्यूल पूरा बन चुका है, लेकिन हम बस उस पे जूम का लिंक ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो लिंक ऐड हो जाए और इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, जल्द से जल्द मिल जाएगा, पूरा स्केड्यूल रेडी।
ایک کوئز میں اوکے کوئز تو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے نا ڈسکس، کیونکہ کوئز تو پھر کچھ لوگوں نے ابھی نہیں کی ہوگی. تو کوئز سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو پلیز آپ اپنی گروپ انچارج کو بھیج دیجیے گا، وہ مجھے بتا دیں گے، یا پھر آپ ڈائریکٹ ٹیلی گرام پہ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے اب کلیئر ہے. اورل اسسمنٹ میں کیا کیا آئے گا ہمیں؟ اورل اسسمنٹ جب آپ سے لیا جائے گا تو کیا کیا چیزیں اس میں آئیں گی؟ اورل اسسمنٹ پلس تطبیق. اوکے گڈ. اور اورل اسسمنٹ کا ٹائم اگر دیا جائے گا کہ سامنے 4 گروپس ہیں، آپ کے پاس اسسمنٹ کا اسکیجول آئے گا کہ 4 گروپس ہیں اور 4 گھنٹے ہیں، تو کیا مجھے میسیجز آئیں گے کہ ہمارے گروپ کا پہلے لے لیں، ہمارے گروپ کا بعد میں لے لیں، میرا پہلے لے لیں، میں اس دن نہیں کر سکتی؟ نہیں، رائٹ. اور کب میسج ایسا آنا چاہیے؟ جب بہت زیادہ ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ گڈ. اب لگتا ہے نا ٹرین ہو گئے آپ لوگ. الحمدللہ رب العالمین. ناؤ آئی کین سے کہ اب آپ لوگ بڑے دکھ بھی رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. وہ تو میں تانے دیتی تھی صرف کہ بڑے ہو گئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، بٹ اب لائک یو آر شوئنگ کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. وی آر میچیور انف. اب ہم آپ لوگوں کو جانے دے سکتے ہیں. وی کین لیٹ گو کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھ سکیں گے. چلیے اب آ جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی تطبیق دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 10 پہ میں کرتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے آیت نمبر 11 دیکھ لیتے ہیں. میں پوچھتی جاؤں گی اور آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر ہم مائک لیں گے نا تو پھر ہمارا ٹائم بہت چلا جائے گا. ہنا میں کیا کیا بتا سکتے ہیں ہم؟ کہ یہاں پہ الف مد ہے. ٹھیک ہے اوکے. پھر لکا، یہاں پر کیا بتا سکتے ہیں؟ لکب تولیا. یہاں پر ہم بتا سکتے ہیں حمزۃ الوصل کو مس نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور تطبیق کی مارکنگ کچھ ایسی ہوگی کہ اگر 80% to 100% کسی نے بتائے نا رول، جتنے بھی رول آئے اس کا 80 to 100% اس نے کور کیے تو ان کو 100% نمبر ملیں گے. 80% سے نیچے آپ نے 50 to 80% کے بیچ میں کیے، 50 to 79%، تو آپ کو آدھے نمبر ملیں گے. اور اگر 50% رول سے بھی کم بتائے، یعنی جتنے رولز آ رہے تھے 10-12 اور آپ نے صرف 4-5 بتائے، 50% سے کم رول بتائے تو 0 ملے گا. ٹھیک ہے، میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی سے تیاری کریں. چلیے، اور کوئی مجھ سے پہلے اسسمنٹ کے نمبرز کا نہیں پوچھے گا پلیز. آپ کے نمبرز ڈلے ہوئے ہیں، بٹ جسٹ دا پرابلم از دس، اس کے کچھ گریڈنگ میں کہیں پہ ایشو ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ابھی میں سسٹم کو کچھ بھی کروں، کیونکہ سسٹم ہمارا اس وقت فریجائل ہے. ٹھیک ہے، اور تو ہم سسٹم کو کچھ نہیں کریں. لیکن آپ بلا دھڑک، آپ کا فرسٹ اسسمنٹ تو بہت پہلے ہوا تھا، اس کے بعد تو آپ نے اتنے ریسائٹیشن لیسنز دیے ہیں، اور آپ کی گروپ انچارجز نے آپ کو اتنی دفعہ الحمدللہ ٹھیک کیا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے کہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس سے دیکھتے ہوئے پریپیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے چلیے، المؤمنون پہ کیا دیکھیں گے؟ حمزۃ الوصل ہے، اس کا بھی بتائیں گے کہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل اسکپ ہو جائے گا، اور اگر حمزۃ الوصل کے ساتھ پڑھیں گے، حمزۃ الوصل سے سٹارٹ کریں گے تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ فتحہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، المؤمنون پہ حمزہ کے اوپر سکون ہے، حمزہ پر ہم جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ واو مد آ رہا ہے. وَزُلْزِلُوا، یہاں پر کچھ بتانے کی بات ہے. ایک تو واو مد آ رہا ہے، دوسرا کچھ کہ لام ساکنہ کا اظہار ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور لام کو ہم نے کلکلا سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، زلزالن، یہاں پر بتائیے کیا بتائیں گے؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اکفا ہو رہا ہے، اور اکفا لائٹ. ٹھیک ہے، اکفا آپ نے صرف کہا تو آدھے نمبر، اکفا لائٹ، اکفا تفخیم، اکفا ترقیق آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، شدیدہ پہ سٹاپ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مدیول. الحمدللہ یو نو ایوری تھنگ، آپ سب لوگوں کو سب آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بس آپ نے اس وقت نروس نہیں ہونا. چلیے الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ریڈی ہو جاتے ہیں ہماری کلاس کے لیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.